Hare Krishna and Pranam, dear devotees. Hare Krishna and Pranam, dear devotees. So welcome to our Saturday evening Bhagavad Gita sessions by His Grace Divya Mohan Prabhu. Divya Mohan Prabhu. Ronnie Prabhu, you got disconnected? Prabhu. I think Prabhuji had joined, but he got disconnected. Maybe some internet issues. Okay. Seems to be. He joined a couple of times. Yeah, he's joining. I think he has joined again. Hare Krishna Prabhu, Dandatana. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी? बस ठीक हूँ प्रभु जी, आप सुनाओ। बस ठीक है। दिव्यामन प्रभु अभी थे लाइन पे, आई थिंक ही गॉट डिस्कनेक्टेड और हाँ जी, he has come. He has joined back. Hare Krishna Prabhu. But I think he's still facing the internet issue. इंटरनेट इशू। ओके ओके। आप कैसे हो? हाउ आर यू रानी प्रभु? Fine Prabhuji, by everybody's mercy. गुड गुड। सो गुड टू हियर। कीर्तन चल रहा था, वृंदावन का भी चल रहा था इससे पहले। नहीं, यही चला था। सॉरी, आई थॉट कि लाइव वहां का था जो राधा श्याम सुंदर। ओके। No Prabhuji, I think this was a recorded one. अच्छा, रिकॉर्डेड था। ओके। Prabhu, you share something in the meantime, if you can share something. आपकी आवाज म्यूट पे हो शायद आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्या शेयर करूंगा? आप ही तो करते हो। You are the most qualified person to share everything. Yes. I read your article today. Mataji had sent and very nice. जो compile करा होगा आपने। So pain का we're trying to come in terms with that concept, but it's so difficult. Not easy to practice that. Yes, Prabhuji. We had the class also from Sitarani Mataji yesterday. Okay. और वो भी इसी पॉइंट पे थी प्रभु जी, उन्होंने भी कल इसी पे, पर उन्होंने बहुत अच्छा समझाया उन्होंने। She explained it very nicely. Right. So somehow love also came the same. Good. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanwa Pranam Prabhuji. So I'm back. I don't know what will happen. So we'll just, yeah, you can hear me properly, Prabhu? Yes, Prabhuji. Okay, then let's try. Other Giraj Prabhu, आज आप करोगे आप कैसे करेंगे? क्या हो गया? नेट नहीं चल रहा प्रभु? अभी आपको आ रहा है? Yes, it is clear, Prabhuji. Okay, so let's pray to Srila Prabhupada and see कैसे होता है. Otherwise, then we'll just read whatever. I mean, we'll read today the translation and this text and try whatever best is possible. Okay. And I'll be careful next time. We should be in Gurgaon. Network is there good.
Oh, you are in Vrindavan today. Oh. So actually that is the reason. So here we are trying with both Jio and Airtel. So कभी वो चल जाता है, कभी वो बीच में एकदम से abruptly बंद हो जाता है. Okay. Otherwise phone and all is fine. Okay. So anyway, let's try, Prabhu, and let's see. So okay, so all have their own Bhagavad Gitas. So we can go to page 1, introduction, and okay. Maybe Giraj Prabhu, आप चाहे mute unmute रख लो, so that then I know कि I'm at least जहाँ हम common पढ़ रहे हैं, so I can hear the response also. Okay, Prabhuji. Okay, so we'll do Mangalacharan and then we continue our session from the last week. Hare Krishna. Om Agyan Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayam Dadati Swapadantikam Vande Ham Shri Guru Shri Utapad Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण. So हमने पिछली बार जो स्टार्ट किया था उसमें हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कैसे भगवत गीता जो है ऐसा ग्रंथ है जिसको फॉलो करने, जिनको पढ़ने से एक्चुअली आप समझिए कि जितने भी और ग्रंथ हैं सारे इसमें कवर होती हैं. और इसमें प्रभुपाद जी ने ये भी बताया था कि ऐसे भी हैं जो टॉपिक जो दूसरे ग्रंथों में ना आपको मिलने लेकिन इसमें कवर होगा. और बहुत हम भाग्यशाली हैं कि इसको आज पढ़ रहे हैं. इसमें हमने पिछली बार कहा कि भगवद गीता बेसिकली 5 तत्व क्लियर करेगा. तो कोई भी शास्त्र अगर हम पढ़ते हैं तो उसको डिफरेंट एंगल ऑफ विजन से पढ़ सकते हैं, डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं. एक तो है कि फिलोसॉफिकली विल डिस्कस करेंगे कि तत्व इसमें क्या है, जैसे कि 5 ट्रुथ हैं, वो तत्व हैं इसके क्या क्या हमने बताया था. भगवान के बारे में बताएंगे. भगवान एक्चुअली मैंने अगर हम गुड़गांव में होते तो मैंने एक चार्ट सा बनाया था जिसको आप हमेशा रेफर कर सकते हैं. वो अगली बार देन आई विल शेयर देन इन द नेक्स्ट सिटिंग, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल में सबसे ऊपर है भगवान. तो जब इंट्रोडक्शन डिफरेंट जगह भगवान का वर्णन आएगा तो एक जगह आएगा भगवान, फिर भगवान अपने दूसरी एक्सपेंशन या अपना एक दूसरा रूप कह सकते हैं वो है परमात्मा और ब्रह्म. ये 3 कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे. और फिर आगे जाके बेसिकली हम आगे कोशिश करेंगे कि ग्लॉसरी जो यूज होगी ना आगे, तो हिंदी और इंग्लिश में एवरीवन कैन एबल टू रिलेट, बिकॉज देन वी विल नॉट गो टू द कि डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, देन इसको डिफरेंटली पढ़ेंगे. तो दूसरा था जीव जो कि हम हैं, जो आत्मा है
और जो कि कवर्ड है बाय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से जो कवरिंग है वो भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा तत्व हमने बताया था प्रकृति, नेचर, और ये सब चीजें समय और कर्मों के आधार पे चल रही हैं। तो लेकिन जब हम आज ये पढ़ना शुरू करेंगे अभी, तो एक्चुअली ये तो कवर करें, लेकिन हम इसको, इस शास्त्र को रस की दृष्टि से ज्यादा पढ़ेंगे। रस कैसे, कि कैसे भगवान इतने दयालु हैं, कैसे उन्होंने इसको अर्जुन को गाइड किया। मतलब देखिए युद्ध होने वाला है इतनी गंभीर सिचुएशन में, ही हैज देयर इज अ 700 वर्सेस ऑफ भगवद गीता, जो कि उन्होंने धैर्य पूर्वक, भगवान अर्जुन उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और धैर्य पूर्वक भगवान उनको पूरा वर्णन करते हैं। उस समय समझे कैसा कि समय ठहरा हुआ है और इतनी हसल बसल है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि कितनी हसल बसल शुरू हो रही है। उसके बीच में अर्जुन के साथ से संवाद है। और ये जो स्पिरिचुअल क्या कहते हैं, भगवान का पास टाइम है, ड्रामा है, स्पिरिचुअल ड्रामा है। इसमें आज जो पहला चैप्टर कवर करेंगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, मतलब ऑब्जर्विंग द आर्मीज एट द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। इसमें 5 पात्र हमारे इसमें इस ड्रामा में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हैं धृतराष्ट्र आएंगे, जो बेसिकली एक जिसमें प्रभुपाद जी डिफरेंट उनकी जितने भी पात्र आएंगे उनकी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से मानसिकता बताएंगे, मनोदशा उस समय की बताएंगे, कैसे क्या वो सोच रहे हैं इस समय, क्या उनकी फीलिंग हो रही है, वो पर्पट में बताएंगे। तो हम हालांकि पर्पट पूरे कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इसमें से डिस्कस जरूर करेंगे कि कैसी कैसी मनोभावनाएं प्रभुपाद जी ने हमें एक्सप्लेन की है, कि उनके जो वर्ड यूज करते हैं उनमें से कैसे उनकी मनोभावना। धृतराष्ट्र है, उसके बाद है संजय। तो ये संवाद बेसिकली भगवद गीता पूरा धृतराष्ट्र संजय के बीच में है। जो संजय हैं उनके सेक्रेटरी हैं धृतराष्ट्र के, और वो इसको व्यास देव जी ने उनको विजन दी हुई है और वो पूरा ये देख पा रहे हैं और बोल रहे हैं, भगवद गीता को बोलेंगे। उसके बाद है अर्जुन आएंगे और फिर कृष्ण आएंगे। डिफरेंट द्रोणाचार्य, भीष्म के बारे में डिस्कशन होगी इसके पहले चैप्टर में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब ये पूरी भगवद गीता संजय ने पढ़ ली, बोल दी उनको, तो जैसे हमारे पास आता ना कि रिव्यू होता है कि किस तरह से उनको फीलिंग कैसे आई पूरी पढ़ने के बाद, तो लास्ट के 18वें अध्याय के जो एंडिंग हो रही है, मैं 2-3 वर्सेस पढ़ना चाहता हूँ, सो दैट हमें ये पता चले कि भगवद गीता जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो कैसे संजय ने उनको कंक्लूड किया है, कि किस तरह से उनको भगवद गीता पढ़ने से फीलिंग आई है। तो ये है 18वें अध्याय का हाँ 74th वर्ड। तो इसमें संजय कह रहे हैं Thus have I heard the conversation of two great souls, कृष्ण एंड अर्जुन। मैंने अर्जुन और कृष्ण के बीच का ये संवाद सुना है, और ये ऐसा अद्भुत संवाद है कि मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं। तो एक्चुअली इसका जो बेनिडिक्शन है एक है कि अगर हम उस भावना से, उस संजय के दृष्टि से देखें, तो इसमें उनका रोमांच उनमें उत्पन्न हो रहा है ये भगवत सुनने के बाद। दूसरा वो कह रहे हैं, अगला वर्ष में कह रहे हैं 74 में, बाय मर्सी ऑफ व्यास देव जी की कृपा से ये मैंने इतना गुह्य ज्ञान सुना है, जो कि किसने बोला है, डायरेक्टली फ्रॉम द मास्टर ऑफ मिस्टिसिज्म कृष्णा, who was speaking personally to अर्जुन। उनके मुखारविंद से उन्होंने सुना है, कृष्ण के मुखारविंद से सुना है। फिर आगे बताते हैं, ओ किंग, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjun, I take pleasure being thrilled at every moment। तो जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ, बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, इस अद्भुत जो संवाद है भगवान के और अर्जुन के बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो मुझे प्रसन्नता होती है। प्रतिक्षण, हिंदी में ऐसा है, प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो रहा हूं मैं।
थ्रिल, उनको गदगद हो रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, ओ किंग, हे राजन, जब मैं इस when I remember the wonderful form of Krishna, I am struck with wonder more and more and I rejoice again and again, which means कि जब वो इस संवाद को सुनते हैं, याद करते हैं, तो उनके साथ में भगवान का अद्भुत सौंदर्य पूर्ण रूप नजर आता है और वो कह रहे हैं कि मैं और आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। रिजॉइस अगेन एंड अगेन, बार बार होता है। और एंड में फिर क्या बेनिडिक्शन देते हैं, वो क्या देते हैं संजय, वो कहते हैं जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये सुनने के बाद उनको ऐसी फीलिंग आती है। तो आज ऐसा हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं जिससे एक्चुअली जब we will feel actually happy at every stage if we really remember this again and again. So chapter 1, so क्या करेंगे अभी, संस्कृत भी हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि एक बहुत सीनियर वैष्णव है, उन्होंने बताया कि ये जो इसकी संस्कृत है, ये आप समझिए कि ये ऐसी धारा है, ऐसा गीत है जो भगवान ने स्वयं मुखारविंद से निकला है। तो अगर हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे फॉलो थोड़ा थोड़ा ही कर पाए, लेकिन ट्राई करेंगे, एक ही रेपिटेशन करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कृष्णा। गिराज प्रभु आप पीछे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना? ओके। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and sons of Pandu assembled in place of pilgrim at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? So अभी ये पहली उन्होंने क्वेश्चन किया है संजय को कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक बता रहे हैं कि इसमें एक तो जो ये कुरुक्षेत्र है, जो कि धर्म क्षेत्र है, उसमें उनको भी पता है धृतराष्ट्र को कि बहुत खतरा है कि ऐसी जगह पे युद्ध हो रहा है जहां जो कि धर्म क्षेत्र है। तो अगर धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहे हैं और कृष्ण उनके साथ हैं, तो उनके जीतने की संभावना बहुत ही कम है एक्चुअली। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये उन्होंने इंक्वायरी से शुरू किया है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली कि जो वर्ड है, एक है मामका पांडवाश्चैव। तो जनरली जो कल्चर रहा है वैदिक कल्चर में, ये स्पेशली द फर्स्ट फैमिलीज में जो कजन्स हैं, उनमें ऐसे भेद नहीं किया जाता था। मतलब इवन इफ इट्स नॉर्मल फैमिली ऑल्सो, ऐसा नहीं होता था कि ये मेरे ताया जी के बच्चे हैं, मेरे चाचा के बच्चे हैं, मेरे मामा के बच्चे हैं। तो वो इतना ज्यादा पेरेंट्स जो होते हैं, इतने ज्यादा घनिष्ठ उनका संबंध होता है बच्चों के साथ कि कोई ऐसा फील नहीं करता कि मेरा बच्चा है, नहीं। तो ये 5000 साल पहले का कल्चर है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि अभी वो भेद कर रहे हैं मामका और पांडवाश्च। तो इसमें क्या होगा कि यही एक जो भेद बुद्धि है, ये सबसे ज्यादा ये पूरे युद्ध का कारण है। और यही एक भेद बुद्धि है एक्चुअली आज भी, वो चाहे देश को बांट रही है, चाहे हमारे घरों में लीन्स को हो रहा है कि मामका पांडवाश्चैव। So this is the biggest stumbling block in everybody's life. तो ये प्रभुपाद जी ने इसमें बताया कि धृतराष्ट्र की जो बुद्धि है वो भेद बुद्धि है, मामका पांडवाश्चैव। उन्होंने अलग अलग करके इसमें स्पेशली पूछ रहे हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य
राजा वचनम अब्रवीत. राजा वचनम अब्रवीत. Sanjay said, "O king, after looking over the army arranged in military formation by sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words." तो जैसे ही संजय ने अब शुरू किया है कहना कि हे राजन, जैसे जैसे उन्होंने पांडु पुत्रों का जो चक्रव्यूह पूरा व्यू देखा तो दुर्योधन अपने टीचर के पास गए. दुर्योधन एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं. So administration में भी he was not a bad administrator actually. So and he was very diplomat, क्या कहते हैं, कूटनीतिज्ञ, बहुत कूटनीतिज्ञ थे. तो उन्हें देखा कि इस टाइम बहुत सेंसिटिव माहौल है, तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं इस समय. टेक्स्ट 3. पश्यताम पांडुपुत्राणाम पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितं चमूं आचार्य महितं चमुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढं द्रुपदपुत्रेण अवशिष्येन धीमता. तव शिष्येन धीमता. O my teacher, behold the great army of son of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. तो उन्होंने बताया कि द्रोदन बता रहे हैं अपने टीचर, अपने गुरु को, हे गुरुदेव, आप देखिए कि कैसी उन्होंने आर्मी लगाई है. किसने अरेंज की है? आपके डिसाइपल ने, जो हैं द्रुपद के पुत्र हैं. और द्रुपद के पुत्र ऐसे हैं कि उन्होंने द्रुपद और द्रोणाचार्य में इतना जबरदस्त शत्रुता थी, एक्चुअली वैर था, कि द्रुपद ने पुत्र पैदा किया है इसलिए कि द्रोणाचार्य को मार सके. फिर भी द्रोणाचार्य ने कि ऐसे ब्राह्मण उदार थे वो, कि उन्होंने उनको शिक्षा दी और सारी की सारी जो युद्ध नीति है उनको बताई. तो अभी वो प्रिक कर रहे हैं, थोड़ा सरकास्टिक बोल रहे हैं उनको, द्रोणाचार्य को, कि आपके ही शिष्य ने लगाया है. सो बी लिटिल केयरफुल कि ऐसी अभी और ज्यादा आगे कोई गड़बड़ नहीं करनी है. टेक्स्ट 4. अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. द्रुपदश्च महारथा. Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhim and Arjun, great fighters like Yuyudhan, Virat and Drupad. तो इसमें वो जैसे सैन्य निरीक्षण करने का अपने दुर्योधन, सारे भीम और अर्जुन, सारी बेसिकली जितनी भी आर्मी के जो खास वॉरियर्स हैं उनका भी नाम लेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए कैसे वो अब दुश्मन क्या कहते हैं, एनिमीज के पूरे जो सेना है उनका वर्णन करेंगे और फिर अपनी सेना का वर्णन करेंगे. इसको कंटिन्यूटी में थोड़ा पढ़ते हैं. टेक्स्ट 5. दृष्टकेतु चेतिकानः दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् सुजित कुंती भोजश्च पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः. शैब्यश्च नरपुंगवा. There are also great heroic powerful fighter like Drishtaketu, Chekitan, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoj and Shabya. Text 6. Yudhamanyuscha Vikranta युधामन्युश्च विक्रांत Uttamaujaschcha Viryavan उत्तमौजश्च वीर्यवान् Saubhadro Draupadeyascha सौभद्रो द्रौपदेयश्च Sarva Eva Maharathaha. सर्व एवा महारथा. There are mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamauja, the son of Subhadra and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. तो इसमें युधामन्यु हैं, पुत्र हैं सुभद्रा के, द्रौपदी के, और सारे बहुत बहुत बड़े फाइटर हैं. टेक्स्ट 7. अस्माकं तु विशिष्टा ये अस्माकं तु विश्यता ये
तानि बोध द्विजोत्तम तानि बोधा द्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य नायका माम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि मे. संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. But for your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. तो पहले तो उन्होंने शत्रु पक्ष की तरफ से सारा बताया है, अब वो अपने कैप्टन्स, अपने जो मिलिट्री वॉरियर्स हैं उनका एक्सप्लेन करने वाले हैं. टेक्स्ट 8. भवान भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च समितिं संजयः नृपश्च समितिं चया अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. सौमदत्तस्तथैव च. There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, the sons of Somadatta called Bhurishrava, who are always victorious in the battle. तो उन्होंने डिफरेंट अपने पक्ष के वॉरियर जो हैं, भीष्म है, कर्ण है, कृप, ये सबका वर्णन कर रहे हैं कि जो हमेशा ही जीतते हैं. तो बेसिकली मैंने बताया कि वो इतने बड़े कूटनीतिक हैं, अभी वो उत्साह बढ़ा रहे हैं द्रोणाचार्य का कि हम जीतने वाले हैं. तो उनको ऐसा अभी तक तो लग रहा है, अभी थोड़ी देर में थोड़ा उनको भय उत्पन्न होगा जब शंखनाद होगा. टेक्स्ट 9. अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः. सर्वे युद्ध विशारदा. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in the military science. Again same वो वही बता रहे हैं कि इतने हीरोज हैं जो मेरे खातिर मरने को तैयार हैं. यहाँ पर वो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं और सबके पास ऐसे दिव्य शस्त्र हैं. ऐसा उनका एक्सपीरियंस है कि ये तो जंग हम जीतने वाले हैं. तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, तो ऐसे वो इनके मित्र थे दुर्योधन के. एक्चुअली जो दुर्योधन भी थे वो ऐसे मित्र बना के रखते थे, ऐसे उनको रखते थे बांध के अपनी मित्रता में कि उनके लिए वो मरने को तैयार थे सारे, कि हम दुर्योधन के लिए मर सकते हैं. टेक्स्ट 10. अपर्याप्तं तद अस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वइदम् एषेताम् पर्याप्तं तब इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं. बलं भीमाभिरक्षितं. Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas carefully protected by Bhim is limited. तो भीम जो है उनके सबसे घनिष्ठ शत्रु हैं, मतलब सबसे ज्यादा उनका जो वैर है ना वो भीम के साथ है. क्यों? क्योंकि जो भीम है वो बल में उनसे ज्यादा हैं दुर्योधन से, लेकिन टेक्निक में दुर्योधन बैठ रहे हैं. क्योंकि दुर्योधन के जो गुरु हैं गदा में जो गुरु हैं वो है बलराम जी स्वयं है एक्चुअली. तो टेक्निक में ही इज बेटर. सो इतनी जबरदस्त इनकी एनिमिटी है कि वो बता रहे हैं कि हम लोग तो प्रोटेक्टेड है भीष्म के ग्रैंडफादर, अपने पितामह भीष्म के द्वारा, लेकिन जो भीम है वो भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन थोड़ी उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है. अपने मतलब उनको कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को भीम के साथ एक्चुअली बता के. टेक्स्ट 11. अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः यथा भागम् अवस्थितः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. भवन्तः सर्व एव हि. All of you must now give full support to grandfather Bhishma
as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. तो इससे अभी वो क्या उनको कह रहे हैं कि जो हमारे पितामह भीष्म हैं वो सबसे बड़े वॉरियर हैं, तो आप सब उनको उनकी रक्षा के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखो। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं परपट में कि बिकॉज ही अगेन ही नोज डिप्लोमेसी, ही नोज कि कैसे मोटिवेट करना टीम को। तो वो भीष्म का भी उन्होंने वर्णन किया था कि बहुत बड़े वॉरियर हैं। अब वो कह रहे हैं कि भीष्म तो है ही हैं, आप लोग भी बहुत जरूरी हैं इस टीम वर्क में, आप लोग भी अपनी अपनी पोजीशन पे रहना, क्योंकि उसके बिना हम जीत नहीं सकते, क्योंकि भीष्म जी को भी आपकी जरूरत है एक्चुअली। सो दिस इज हाउ ही वाज मोटिवेटिंग द ऑल द वॉरियर्स कि आप सब लोग डटे रहिए अपनी अपनी पोजीशन पे। टेक्स्ट 12 तस्य संजनयन हर्षम तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै सिंहनादं विनोद्य च शंखम दद्मौ प्रतापवान। शंखं दद्मौ प्रतापवान्। Then Bhishma, the great valiant grandsire of Kuru dynasty, the grandfather of fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of a lion, giving Duryodhan joy. तो जैसे भीष्म देव उनका मूड देखते हैं और उसका दुर्योधन का, तो शंखनाद करते हैं और उस शंखनाद से इतनी तीव्र ध्वनि होती है जैसे जैसे एक लॉयन गरजता है, और उससे दुर्योधन को प्रसन्नता मिलती है कि भीष्मदेव मतलब पूरे चार्ज हैं लड़ जीतने के लिए। टेक्स्ट 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च तथा शंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः प्रणवानक गोमुखा सह सैवाभ्य हन्यन्त सहसैव्याभ्यन्तया सशब्दस्तुमुलो भवात्। सा शब्दा तुमुलो भवात्। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. Tumulo, जो tumulo शब्द है वो tumultuous है। तो जैसे ही उन्होंने अपना शंख बजाया है, तो साथ ही ड्रम, ब्यूगल, ट्रम्पेट डिफरेंट डिफरेंट बजने शुरू हो गए और बहुत ही एक उद्घोष होने लगा उस समय। टेक्स्ट 14 ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सयनन्दने स्थितौ महती स्यादने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतु। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतौ। सो इस वर्ष में माधव, ये मेरा फोन टेढ़ा हो गया है, तो इस वर्ष में क्या है, कृष्ण इंट्रोड्यूस, भगवान स्वयं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं संजय क्या नाम लेके, माधव। वो कह रहे हैं कि ऑन द अदर साइड Lord, both Lord Krishna and Arjun stationed on a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental conch shells. तो इसमें क्या है, माधव का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि who is the husband of fortune. तो इसका मतलब ये है, बताते हैं कि जो कृष्ण है हस्बैंड ऑफ फॉर्च्यून है, तो निश्चित है कि पांडवों की विजय होने ही वाली है। एंड वो अपने दिव्य, इनके शंखों को दिव्य कहा गया है कि दे आर ब्लोइंग देयर दिव्य शंख। अब नाम बताएंगे। टेक्स्ट 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भीमकर्मावृकोदरा। Lord Krishna blew his conch shell called Panchjanya. Arjun blew his the Devdatta, and Bhim, the ferocious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pandra. तो भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य,
अर्जुन के नाम का शंख का नाम है देवदत्त और भीम बजा रहे हैं पौंड्र शंख। तो इसमें बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि इसमें जो नाम दिया है कृष्ण का, पहले था माधव, अब है ऋषिकेशो। 5 जन्यम ऋषिकेशो। ऋषिकेश कौन है? ऋषिकेश इज बेसिकली हु इज द कंट्रोलर ऑफ सेंसेस। ऋषिकेश, ऋषि मतलब सेंसेस, और उनके ईश्वर जो हैं कृष्ण हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भक्त भगवान को अपनी सेंसेस सरेंडर करते हैं तो उनका भगवान डायरेक्ट इंचार्ज बन जाते हैं। He becomes directly in charge of those senses, and then he controls the. इसमें पर्पट मिलेगा here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjun, and thus his particular name of Rishikesh is told here actually. भगवान के कई नाम हैं, जैसे कि मधुसूदन, जो कि मधु डीमन को मारने वाले हैं। उसके बाद है उनका नाम है गोविंद है। पर्पट में प्रभुपाद जी बताते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो भगवान के नाम है, इनके उच्चारण से ही एक्चुअली वी कैन प्लीज द लॉर्ड। एंड हिज नेम इज गोविंदा बिकॉज ही गिव्स प्लेजर टू काउज एंड द सेंसेस। उनका एक नाम है वासुदेव। ये सब नाम आने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम आने वाले हैं। Because he appeared as a son of Vasudev, देवकी नंदन, because उनकी मदर है देवकी, यशोदा नंदन, क्योंकि उनकी जो माँ है, childhood pastimes of Yashoda at Vrindavan, he awarded his childhood pastime to the Yashoda at Vrindavan. Then उनका नाम है पार्थ सारथी, जिसमें कि वो चैरिटियर बने, सारथी बने अर्जुन के। ऐसे ही ऋषिकेश जो भी इस वर्ष में है, जो कि डायरेक्शंस देने वाले हैं अर्जुन को इस युद्ध में। टेक्स्ट 16 to 18। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, नकुलः सह देवश्च, नकुला सह देवश्च, घोष मणिपुष्पकौ, सुघोष मणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वर आशः, काश्याश्च परमेश्वर आशा, शिखंडी च महारथः, शिखंडी च महारथा, दृष्टद्युम्नो विराटश्च, दृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकी च पराजितः, सात्यकी च पराजिता, द्रुपदो द्रौपदयाश्च, द्रुपदो द्रौपदेयश्च, सर्वस्य पृथ्वीपते, सर्वशा पृथ्वीपटे, सौभद्रश्च महाबाहु, सौभद्रश्च महाबाहु, शंखा दद्मु पृथक पृथक। शंखा ददमु पृथक पृथक। तो इसमें हर जो बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए इसका वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज अनंत विजय बजा रहे हैं, नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पक, काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, सात्यकी, द्रुपद, उनके द्रौपदी के पुत्र, ये सब ने, और सुभद्रा के पुत्रों ने डिफरेंट अपने अपने कौशल बजाए। टेक्स्ट 19। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम, सघोषोधार्त राष्ट्राणाम, हृदयानि वैदारतः, हृदयानि व्यधारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव, नभश्च पृथ्वीं चैव, तुमुलोऽभ्यनुदायन। तुमुलो अभ्युनुदायनम्। तो इसमें बहुत सुंदर ये वर्स है। इसमें जब इतनी डिफरेंट जो कौशल बजे हैं, इतनी अप्रोरिय, इतनी बहुत ज्यादा रुद्र ध्वनि हुई है कि जिससे कि आकाश और धरती दोनों हिल गए, और इसकी वाइब्रेशन ने जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनका जो हृदय है वो पूरे का पूरा शैटर्ड का मतलब हो गया, हृदय मतलब भय में आ गए पूरे। तो इसमें बड़ा सुंदर है, प्रभुपाद जी ने पर्पट में बताया है कि जब एक्चुअली बाकी शंख बज रहे थे उनकी तरफ से, तो कोई ऐसा भय का माहौल नहीं बताया गया है कि अर्जुन वगैरह भय में है। क्यों? क्योंकि
जिसने भगवान का शरण ले ली है तो उसके पास कोई भय की चीज नहीं होती। इवन प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन हु टेक शेल्टर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हैज नथिंग टू फियर इवन इन द मिडस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कैलामिटी। मतलब बहुत भयानक स्थिति है तब भी डरने की बात नहीं। टेक्स्ट 20, अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज ते शस्त्र संपाते पृथ्वी ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम उद्यम्य पांडवः धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। इदम् आह महीपते। At that time Arjun, now the story is starting. This is a context we just discussed कि क्या situation है, पूरा युद्ध की क्या थीम है। अभी वो अर्जुन शुरू हो रहे हैं, डिस्कशन स्टार्ट होने वाली है। At that time Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot bearing flag marked with Hanuman. उनके जो चैरियट है उनपे हनुमान जी का फ्लैग है, फ्लैग हनुमान जी उसमें बैठे हुए हैं। took up his bow and prepared to shoot his arrow, मतलब उन्होंने हाथ में धनुष ले लिया है और तीर चलाने वाले हैं। लेकिन हे राजन, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in the military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. अब वो चलाने लगे हैं तीर, लेकिन उन्होंने देखा कि सबको जैसे देखा तो उन्होंने कृष्ण पे बोला। Let's hear. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये सैन्योरुद्ध्योर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत रथं स्थाप्य मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहम् यावदेतान् निरीक्ष्येऽहम् युद्धो कामान् अवस्थितान् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अस्मिन् रन समुद्यमे। अर्जुन said, ओ इनफॉलिएबल वन। इनफॉलिएबल वन कौन है? अच्युत। इसमें जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी he doesn't fall, च्युत नहीं होता, जिनका अच्युत है। कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम है। ओ इनफॉलिएबल वन, हे अच्युत, please draw my chariot between two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. तो हे कृष्ण, हे अच्युत, आप ये जो मेरा रथ है दोनों सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, सो दैट मैं देखूं कि कौन लड़ने आए हैं और किन से मुझे युद्ध करना है। टेक्स्ट 23, योतस्यमानान् अवेक्षेऽहम् योत्स्यमानाम् अवेक्षेऽहम् य एते अत्र समागताः यत् एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Sanjay uvacha. संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय said, O descendant of Bharat, ये उनको राजा धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। Having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in midst of armies of both parties. यहाँ पर भगवान का नाम है अगेन ऋषिकेश और अर्जुन का नाम है गुडाकेश। गुडाकेश प्रभुपाद जी बताते हैं who has conquered the sleep
who has conquered the sleep is called Gudaka मतलब sleep, and conquer means जिनका ईश जिन्होंने जीत ली है. Sleep also means ignorance. So जो अर्जुन है गुड़ाकेश है, लेकिन इस एपिसोड में, इस पूरे संबंध में उनकी जो वो कंडीशनड पोजीशन में आ जाएंगे, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी पूरी, जैसे वो देखेंगे अब. टेक्स्ट 25. भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरूनिति. संवेतान् कुरुमिति. In the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold Parth, all the Kurus assembled here. So this is the first dialogue, first verse by the Lord, जिसमें वो कह रहे हैं कि हे पार्थ देखो कि सारे जो युद्ध लड़ने आए हैं कैसे आए हुए हैं. तो इसमें प्रभुपा जी बताते हैं, as the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of अर्जुन. क्योंकि जो कृष्ण है रथ पे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ सुपर सोल परमात्मा अर्जुन के हृदय में भी विराजित हैं. सिर्फ कि अर्जुन के हृदय में नहीं है, वो सबके जितने भी युद्ध होने वाला है, जिनके सबके हृदय में वही सेम परमात्मा है, और सबकी मनोस्थिति इस टाइम जान रहे हैं. वो जानते हुए भी वो दिखा रहे हैं कि लेट्स सी कि नाउ हाउ ही इज गोइंग टू रिएक्ट. टेक्स्ट 26. तत्र पश्यास्थितान् पार्थः तत्र पश्यास्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव श्वाशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. सेनयोरुभयोरपि. सो आप देख सकते हैं कि नाम सारे पितृन, पितामहान, पितामह ग्रैंडफादर, आचार्य, मातुलान मामा, भ्रातृन भाई, पुत्रान पुत्र, पौत्रान पौत्र, सखीम जितने मित्र, श्वशुर मतलब इन लॉज, और जितने भी सगे संबंधी इस समय भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन आप देखो कि कैसे ये सब लोग अभी युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं. टेक्स्ट 27. तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धुरवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्. विषीदन् इदम् अब्रवीत्. When the son of Kunti, Arjun, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. तो अभी उन्हें जैसे ही इतने अपने सगे संबंधियों को देखा है, हाथ में अभी तक तो तीर लिया था छोड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही इन सबको देखा, नाउ उनके जो मन में कंपैशन, दया उत्पन्न हुई है. अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट टेक्स्ट 28. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्तीमं गात्राणि सिदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. मुखं च परिशुष्यति. आप संस्कृत जब पढ़ते हैं ना, तो अगर ध्यान से देखेंगे बड़ा यू कैन ऑलवेज गेट सम सेंस कि दृष्टवम स्वजनम कृष्ण, सारे अपने सगे संबंधियों को देखकर, क्या युजुत्सुम समुपस्थितम, किससे आए हैं? युद्ध की इच्छा से. सिदंतिम मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, उनका मुख और कंठ जो है सूखने लग गए. Arjun said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives
present before me in such fighting spirit. सारे सब लड़ने को तैयार खड़े हुए हैं वहां पर. I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. तो प्रभुपाद जी इसमें पर्पट में लिखते हैं, any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigod, whereas a non-devotee, however advanced he may be in material qualification, by education or culture lacks in the godly qualities. So इसमें आगे लिखते हैं, he felt compassion even for the soldiers of opposite parties, foreseeing their imminent death. करोड़ों की संख्या में युद्ध करने आए हैं, तो अर्जुन को अभी देख के लग रहा है कि अब सब ये मरने वाले हैं, उनके ऊपर अभी दया आ गई. Such symptom, last line in the purport, such symptoms in Arjun were not due to weakness but to his soft heartedness. क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, उनका हृदय जो है वो कोमल है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक भक्त का लक्षण है. सॉफ्ट हार्टेडनेस इज अ साइन ऑफ अ डिवोटी. maybe one or two texts we do and then we see ki how everyone feels and any comments we share today. Maybe 7:52. My timekeeper is my good wife. She is keeping a tab. बस हो गया. वेपतुश्च शरीरे में वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्ते हस्तात् गाण्डीवं संस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते त्वक्चैव परिदह्यते. तो इसमें भी संस्कृत से क्लियर हो रहा है कि क्या होने वाला है. माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग. वेपतुश्च शरीरे में होम हर्षश्च जायते, रोम हर्षण हो रहा है. माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड. रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मेरा जो गांडीव है वो हाथों से गिर रहा है और मेरी स्किन जो है, मेरी जो त्वचा है वो जल रही है. ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी पर्पट में. अर्जुन सिम्टम्स इन दिस सिचुएशन आर आउट ऑफ मटीरियल fear, and this is so widely prevalent. Actually, if we are not in devotion life, this is the main reason for subsistence. We need money, we need everything only we feel to avoid this material fear, and the shelter is money. लेकिन कोविड ने वो बता दिया कि even if you have money, it's not possible. You can't still get a bed in the hospital. Arjun's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandiv was slipping from his hand. उनके हाथों से गिर रहा है धनुष उनका गांडीव. 30. न च शक्नोमि अवस्थातुं न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः. विपरीतानि केशव. विपरीत केशव, उनका नाम हम केशव ले रहे हैं. माधव, केशव, ऋषिकेश, ये सब नाम आए हैं भगवान के भीतर. तो उनको कह रहे हैं कि विपरीत सब दिख रहा है. निमित्तानि च पश्यामि, मैं देख पा रहा हूँ सब विपरीत. कैसे बता रहे हैं? I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of Keshi demon. This is a Prabhupada जी ने बहुत सुंदर पर्पट में बताया कि ये मनोदशा कैसी है. वो कैसी है? When a man sees only frustration in his expectation, he thinks, why I am here? Everyone is interested in himself and in his own welfare. No one is interested in Supreme Self. Arjun is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. So for today, we stop here at
verse 30. So we have 16 more verses which will cover next session along with some portion of text chapter 2. But we really may take 2 minutes more to, this is the most important part. So actually क्या है, जो मैंने चार्ट बनाया था, I wanted to share through that chart, but I'll try to stay ऐसे ही बताने की कोशिश करूंगा. जो अगर आप ट्राइंगल देखेंगे, उसमें ट्राइंगल में 3 मेन सूत्र हैं, भगवान, जीव और प्रकृति. उसके बाद समय है, समय की चाल चल रही है, और कर्मों के साइकिल में जीव बंधा हुआ है. 99.9% जो कि जो भक्ति में नहीं है, जो भगवान को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनका जो पूरे का पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर, मतलब जीव का सारा फोकस अपने ऊपर है. उनके जितने प्रश्न होंगे वो अपने लिए होंगे, या मम अहम ममेति, मेरे लिए या मेरे संबंधियों के लिए या मेरे मनी के लिए, इससे ज्यादा सोच नहीं है. तो वो जो 360 डिग्री व्यू है, जिसमें कि भगवान की इच्छा, प्रकृति कैसे काम कर रही है, समय क्या चल रहा है, या फिर मेरे कर्मों का बंधन, वो कुछ उसका ध्यान नहीं. तो इसमें प्रभुपाद जी ये क्लियरली मनोदशा बता रहे हैं कि दिस इज अ टिपिकल मेंटालिटी ऑफ अ पर्सन हु जस्ट थिंकिंग नाउ व्हाट फॉर मी. आगे आएगा, वो बताएंगे कि जब ये युद्ध में सब मर जाएंगे तो मतलब भोगने के लिए तो मुझे चाहिए ना, ये जो अगर इतना बड़ा राज्य है तो दिखाना किसको है एक्चुअली. तो ये सब तो मर जाएंगे, तो आगे जाके सारा फीलिंग उनकी और क्लियर होंगी अर्जुन की समय. हरे कृष्णा. यहाँ पर आज विराम देते हैं. मे बी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं बिकॉज वी आर रीडिंग द संस्कृत ऑल्सो, बट आई थिंक स्टिल बेटर वी हियर द संस्कृत टेक्स्ट, वी गेट यूज टू द सम ऑफ द वर्ड. जो संस्कृत हिंदी कुछ अंदर चित्त में जाना शुरू होगा. हरे कृष्णा. Any comments or anything we can discuss or question or something you can share, you want to share? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, ये जो 12 नंबर का जो श्लोक था ना, हाँ जी, तो उसमें जब ये बताया कि भीष्म पितामह दुर्योधन के मन में मतलब जैसे डर आया, तो उन्होंने वो पौंड्रम जो शंख है वो बजाया कि वो प्रसन्न हो जाए. हाँ जी, हाँ जी. मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं सुना, या तो मेरी तरफ से नेटवर्क में प्रॉब्लम है, या फिर जो मैंने लास्ट सुना है कि उन्होंने पौंड्रम शंख बजाया. तो क्वेश्चन क्या है माता जी, या जस्ट वांटेड टू शेयर इट? तो उन्होंने वो शंख बजाया उस टाइम उसको दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए. फिर इसी पैराग्राफ में जो लास्ट में लाइन आ रही है कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा, उनको युद्ध में विजय की आशा नहीं है. तो ये दोनों ही एक चीज एक ही पैराग्राफ में कैसे आ गई? मतलब कि एक तरफ तो दुर्योधन को बता रहे हैं कि प्रसन्न कर रहे हैं कि मतलब मैं शंख इतनी बजा रहा हूँ, है ना, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि विजय की उनको आशा नहीं है. ये तो हमें भी पता है कि भगवान मतलब उनके साथ हैं, पांडवों के साथ, तो वो उनकी ही विजय निश्चित है. तो उन्होंने ये जो बोला कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है, तो किस चीज से दिख रहा है इसमें कि विजय की आशा नहीं है? शायद मुझे समझ में नहीं आया है थोड़ा सा. एक्चुअली जो नीचे परपट है वो कमेंट्रीज हैं जो प्रभुपाद जी ने लिखी हैं इसमें. उसमें उन्होंने, क्योंकि जो भीष्म है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और जो 12 महाजन हुए उनमें से एक भीष्म हैं. तो भीष्म को यथास्थिति पता है कि जो कृष्ण उनकी तरफ है, हम जीतने वाले नहीं है, लेकिन टू कीप हिज कमांडर, हिज राजा जॉयफुल, बिकॉज दिस, ये भी एक कूटनीति है माता जी, ये भी नीति है कि जिसके पक्ष में आप युद्ध कर रहे हैं, आप अपने लीडर को डीमोटिवेट नहीं कर सकते. तो उनको मोटिवेट रखने के लिए उन्होंने ये शंख बजाया, जबकि उनको मन में पता है कि ये जीतने वाले तो हम नहीं हैं. लेकिन क्योंकि उनका भगवान, जब महाभारत में आएगा इनका वर्णन, तो बड़ा जब युद्ध होता है तो इन भीष्म के और कृष्ण के बीच में भी एक रस है, जो शौर्य रस, वीर रस, आपस में लड़ने का, है ना. तो वो युद्ध तो अपनी पूरी ताकत से करेंगे. अभी भी भीष्मदेव ऐसे नहीं युद्ध करेंगे हम जीतने नहीं वाले हैं, तो वो पूरी ताकत लगाएंगे. ये भी एक टेस्ट है, क्योंकि भीष्म महाजन है, ही नोज कि कृष्णा विल लाइक दैट फाइट, माय फाइट, बिकॉज अभी कृष्ण
स्वाद चखना चाहते हैं लड़ने का, कि भीष्म जो लड़ेंगे, है ना, के लिए वो लड़ेंगे, बहुत बहुत वीरता से लड़ेंगे भीष्मदेव। हालांकि उनको पता है जीतने वाला नहीं हूँ, फिर भी ही नॉट बी सेइंग कि मैं एक अच्छे से लड़ूंगा नहीं, क्योंकि हारने वाले हैं, ऐसा नहीं है, तो लड़ेंगे। तो इसलिए वो प्रभु जी, मदद देता है। हाँ जी प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि भीष्म पितामह को फीलिंग थी कि ये जो लॉर्ड कृष्ण है ये भगवान है, तो बाकी साइड पे जो कौरव और पांडव थे, क्या उनको फीलिंग थी कि कृष्ण जी वो केवल एक मानव के रूप में, सारथी के रूप में आया, या वो भगवान है? उनको कैसा फीलिंग था? नेटवर्क प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी वो वृंदावन धाम में है और उनका जो एंटीना है वो वहीं ट्यून्ड है, वो यहाँ गुरुग्राम पे ट्यून नहीं है। सो आई थिंक किसी तरह से भगवान की कृपा से हमारी क्लास पूरी हो गई। शुरू में वो कट रहे थे, आ गए। आई थिंक यस काम। यस प्रभु जी। so उनकी they were not considering him as so अर्जुन भी मोही है, लेकिन अर्जुन की क्वालिटी क्या है? इवन एक्चुअली दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। सो इवन इफ हम कंडीशनड पोजीशन में है इस समय, जैसे कि अर्जुन अभी आएंगे कंडीशनड पोजीशन में आएंगे, लेकिन जैसे ही भगवान को सुनेंगे, जैसे उनकी शरणागति में आएंगे, उनको फॉलो करने लग जाएंगे। सो यही एक्चुअली यही तो दोनों का भेद है। वो नहीं समझते थे कि ये भगवान है, उन्होंने उनको सुना नहीं कभी। Any other point or something, or because we are just on the time only 3 minutes. This format is fine, Giraj Prabhu, or we? It is fine, Prabhu ji. Format is fine. We can इसी बहाने। So जैसे अब गिरिराज प्रभु पीछे दोहराते हैं, आप अपना अपना पर्सनल जरूर कोशिश किया कीजिए दोहराने की। Even if we may not able to get the Sanskrit, but try to loudly chant that vibration. चाहे म्यूट में करिए, लेकिन प्लीज कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए। And we'll find this dialogue very sweet. Hare Krishna. So then we end the session now. Thank you so much. Thank you so Hare much. Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Jai Shri Prabhupada. Thank you. Thank you.